کے سامنے یہ روڈ بنا ہوا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو مرید کے ساتھ ہوا وہ ہم اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس انجام تک ان کو پہنچایا گیا ہمیں اور آپ کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے ظلم کے خلاف ایک قوت بن جانا ہے، ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور مرید عباس کے قتل کو ہم نے فقط قتل ان کا نہیں بلکہ مظلوموں کی آواز کا قتل سمجھ لینا چاہیے۔ ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو اور تمام برادری جو صحافت سے تعلق رکھنے والی ہے، سب کو مجتمع ہو کر، متحد ہو کر اس آواز میں اپنا آواز ملا کر اس آواز کو توانا بنانا ہے، قوی بنانا ہے کہ مرید عباس کے قاتلوں کو پھانسی دو، گرفتار کر کے جیب کردار تک پہنچاؤ۔ یہاں آ کر اس طرح احتجاج کر کے مرید عباس کے لیے اس طرح سے ہم بینرز لے کر کھڑے ہوں پریس کلب کے باہر، مجبوری ہے کہ جب انصاف ملتا ہوا نظر نہ آئے اور اس طرح کے ہمارے چینل جو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اور سندھ کو دن رات سرو کریں، اور اس میں کام کرنے والے ہمارے اینکر، صحافی، رپورٹر، ان کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے اور ان کو بھی انصاف نہ ملے، تو ان کے پیچھے وہ یوتھ، وہ نوجوان، وہ میری بہنیں جن کا شوق ہے، جن کا پیشن ہے کہ ہم میڈیا انڈسٹری میں آئیں گے، ہم رپورٹر بنیں گے، ہم ایک بڑے چینلز کے رپورٹر بنیں گے، یہ آئیڈیا کر کے وہ آگے آئیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسا ماحول ہو جاتا ہے اور ان کا اس طرح بے دردی سے قتل ہو جائے، اور ان کو بھی اتنے بڑے چینل کے ایک رپورٹر کو بھی انصاف نہ ملے، اور اس کی بیوی اس طرح پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر سراپا احتجاج ہو کہ میں وہ بیوی ہوں جو انصاف کے لیے ترس رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں، تو کیا انصاف بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے؟ تو کیا انصاف اس ملک کو لوٹنے والوں کے لیے ہے؟ تو کیا انصاف 10، 15، 20 قتل کرنے والوں کے لیے کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں، وہ ملک سے باہر چلے جائیں؟ اور اگر کوئی اس طرح کی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان جو جدوجہد کریں اپنے پروفیشن سے، ان کو انصاف نہ ملے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ اب یہ احتجاج کہاں تک جاتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے جج صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے امیدیں ہیں، آپ سے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سن کر اگر ادھر انصاف مل گیا تو شاید آئندہ اللہ نہ کرے کوئی مرید عباس کا اس طرح بے دردی سے قتل ہو اور اس کی فیملی اس طرح پہ احتجاج ہو، آپ شاید نہیں چاہیں گے۔ تو ہم آپ سے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج کو کسی طریقے سے سنیے، اس کے اوپر عمل کریں، اور جو پکڑے گئے ان کو کارروائی جو بھی قانونی سزا دینی ہے دیں، اور جو نہیں پکڑے گئے ان کو کٹہرے میں لائیں تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں، اور پتہ چلے کہ اس ملک میں برابر کا قانون ہے، برابر کا انصاف ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ بھائی بڑوں کے لیے انصاف ہے اور چھوٹوں کے لیے ساری زندگی جیلوں میں سڑنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بات وہاں حکومت کا جو داخلہ ہے ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد جا کر عدالتیں کم از کم ایک انتہائی معروف شخصیت صحافی اینکر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جانے کے بعد کم از کم یہاں ہمیں
फौरी इंसाफ मिलेगा, उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 बरस हो गया है और आज भी उनकी फैमिली को, उनकी बेगम को उनके इंसाफ के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। ये बताता है कि जो आम आदमी है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसके लिए इंसाफ का हुसूल किस कदर मुश्किल है। जुल्म की बात ये है कि अदालतों में बेहतर वकील अपना हायर कर लेने से और दीगर मुझे नहीं इल्म किस तरह का असर और रसूख लगाने से जो सामने की बात है नज़र आ रहे हैं कि मुल्ज़िम नहीं है, मुजरिम है, जो कि उस वक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से असला निकला है, सब कुछ है और इसको दहशतगर्दी नहीं माना गया। इस कत्ले अमल के मुजरिमों को इस तरीके से आसानी से ज़मानतें मिल रही हैं, जबकि हमारे सामने किसी मुल्क में ऐसे किसी शहर में भरे पड़े हैं कि जहाँ कोई सबूत ना होने के बावजूद भी लोगों को कई कई साल तक ज़मानत तक नहीं दी जाए। तो ये सरासर जुल्म है। यकीनन इसमें मीडिया को मज़ीद आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो लायक तहसीन हैं, अदालतों के ऊपर सवाल आ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कि आपके मातहत है ये अदलिया, इसलिए मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि उन्होंने क्यों मुकदमा इस तरीके से नहीं बनाया, नहीं पेश किया कि जो वाज़े मुजरिम हैं उनको सहूलत मिल रही है। तो हम इसलिए फैमिली के साथ खड़े हैं। पूरी तबाद हमारे भाई के आज हिस्स है, उनके फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके कातिलों को जल्द सज़ा दी जाए ताकि उनकी जो फैमिली है उसको कुछ उसकी आशंका हो। क्या है कि इंसाफ करते हैं 1 साल हो गया और बच्चा नए लैंग्वेज की समझ आता है और लोग हैरान होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं सजा हुई। CCTV फुटेज अब तक लोगों ने देखे, आतिफ जमान जो कि दंदनाता हुआ आया मारने के लिए, उसके साथ साथ में उसको गार्ड करने के लिए अपना अस्तर फराहम करते हुए जो कि मास्टरमाइंड था आतिफ जमान साथ साथ था। पुलिस से पहले जिस शख्स को मारा चंद मिनट पहले हरे बाजार में, उसके बाद फिर मेरे शोहर को मारने के लिए आया, लेकिन उसको ज़मानत दे दी जाती है। ना सिर्फ उसको कत्ल की केस नहीं बल्कि जो असलह लाइसेंस का आर्म एक्ट का केस था उसमें, क्योंकि मेरा शोहर तो दुनिया से ही चला गया, काफिर यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं। सोने पे सुहागा की पर्दे क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो विलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है कि हम तो मुजरिम हैं, हमें कभी ना कभी तो शिकंजे में तो आने ही है। तो विलिंग टेक्निक्स क्योंकि इससे फ़ायदा जो है वो मुसलमान का होगा। कभी ऐसे नहीं कहा जाता कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे जस्टिस को, वहाँ पर आपकी गवाह भी इधर उधर हो सकते हैं, आप अपने वो भी मिसमैच हो जाते हैं, बताए जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। और देखिए उस दिन आतिफ जमान जो है उसको मिल गई है ज़मानत और इसके बाद से अभी तक जो पेशियाँ हो रही है उसमें वो हाजिर नहीं हो रहा। कानून ये कहता है कि जब आप किसी केस में नामजद हो और आपको उससे अगर मिल जाए ज़मानत तो आपको वहाँ पे हाजिर ज़रूर होना है। अगर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आप नहीं आ सकते तो अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन मुफ्त करवाते हैं, मगर वकील साहब आएंगे तो एप्लीकेशन होगी। वो अदालतों को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो आएँ और आके जो है अदालत से जो करें उनसे रिक्वेस्ट करें कि कोई वजह जिसकी वजह से नहीं आ रहे। यहाँ पर वो गायब है। हमें खदशा है कि आतिफ जमान फरार हो गए, क्योंकि वो जिस तरह के ये लोग शातिर लोग हैं जो अपने सगे माँ बाप बहन भाई को कहने के जलजले में मर गए थे, झूठी खबरों पे फातिहा पढ़वाएं, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि मुझे फातिहा है जो उनकी साथ लाने की ना सिर्फ मुझे बल्कि इसके साथ साथ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उनकी जमा पूंजी चली। इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन। वो तमाम लोग मासूम जो अवामुन्नास जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, गबन हुआ है, उनका पैसा उनकी जमा पूंजी वो लेके शख्स आज आराम से बैठा हुआ है, आराम से जेल में ज़रूर है, मगर वो जिस तरीके से जिस एटीट्यूड के साथ वो आता है और जिस एटीट्यूड के साथ वो आके पेश होता है, सब लोग देखकर कितना फ्रेश लगता है। आम जिंदगी में आपने कभी किसी मुजरिम को, किसी कातिल को इतना फ्रेश देखा है? उनकी हालत इतनी गैर हुई होती है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये जेल में है। अब कड़ी इतनी टाइट लगी हुई होती है तो उधर को यहाँ पे खून के निशान बने होते हैं।
लेकिन क्योंकि हथकड़ी को यूज़ करने के भी पैसे दिए जाते हैं और उसके पास तो है पैसा, सब कलूट का बैठा हुआ है, वो पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है और हम भी तमाशे देख रहे हैं, आप सबने देखे हैं, हमारे बात यह है कि मैं पूरे साल से यहाँ पर मैं लड़ रही हूँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे। हाँ, एक बात जो मैं अदलिया से तमाम अगर कोई देख रहा हो, कोई साहब देख रहे हो, कोई अदलिया का कोई देख रहा हो, तो मैं एक बात आपको ये एक बात चीज़ बताना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे जब भी मैं इस केस के बारे में बात करती हूँ, मैं अपने शौहर के बारे में कोई भी पोस्ट डालती हूँ, हज़ारों लोग, मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा कभी नहीं देखा होगा जिससे ये कहा हो कि ये अदलिया से आपको इंसाफ जरूरी है। लोग यही कहते हैं कि आप अल्लाह से हो रही है, ये तो गला चला निज़ाम है, आप क्या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम, ये एक इमेज ऐसा क्यों बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सालों गुजर जाते हैं और उसका जब अगर रिजल्ट आता है तो वो ऐसा आता है कि मुसलमान के यहाँ पे वारंट जारी हो जाते हैं और जो बेचारे मजलूम होते हैं वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, फिर अल्लाह की अदालत में कहते हैं अल्लाह अब तेरी अदालत में ये केस शुरू हुआ है। अगर इस केस में आप लोग इंसाफ नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ, और लोग जब खुद कर रहे हैं, वो आप लोग कुछ लोगों से पूछ लीजिए, वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो लोग कर रहे हैं, जाके आप कमेंट कीजिए, किसी से पूछिए, लोगों से उनके पूछिए कि वो क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, कि ना इंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में। शौक़ नहीं है मुझे यहाँ पर ऐसे खड़े होकर तमाशा लगाने का, लेकिन क्योंकि जब इंसाफ नहीं हो रहा तो इंसाफ के लिए मैं आऊँगी, मैं चीखूँगी, मैं शोर मचाऊँगी। इंसाफ क्योंकि आप लोग जो देंगे ना, वो किसी पे एहसान नहीं है, आप लोगों का फ़र्ज़ और हम लोगों का ही हक़ है। दूसरा, अगर इंसाफ नहीं देंगे और जो तमाम लोग जो कहते हैं कि आप लोग तो मीडिया के हैं, आप तो एंकर हैं, आपके हस्बैंड तो एंकर थे, आप लोगों के साथ ये है, तो आम लोग जो हैं आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। जब आप उनको डिस्करेज करेंगे कि वो अदलिया का दरवाज़ा ना खटखटाएँ। 9 जुलाई 2019 और 9 जुलाई 2020 एक साल मुकम्मल हो गया है और आज भी हम मुरीद अब्बास के इंसाफ के लिए, मुरीद अब्बास के जो बहिमाना कत्ल हुआ उसके लिए आज भी हम प्रेस क्लब कराची के बाहर मौजूद हैं। और वो लोग जो खुद मीडिया के लोग हैं, जो दूसरों के इंसाफ की बात करते हैं, दूसरों पर होने वाले जुल्म को आश्कार करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। आज एक साल गुजर गया, मुरीद अब्बास की अहलिया आज भी अदालतों में जा रही हैं, आज भी प्रेस क्लब पर हमें आज बरसी करनी पड़ रही है। यहाँ पर आज हमने मोमबत्तियाँ जलाई, रोशन की कि मुरीद का नाम भी रोशन रहेगा और इस केस को भी हम नहीं बुझने देंगे। लेकिन खुदारा दरख्वास्त है पाकिस्तान की अदालतों से, इदारों से कि इंसाफ को एक आम आदमी के लिए बहुत सादा और सस्ता कर दीजिए। लेकिन वहाँ एक मीडिया पर्सन, एक एंकर पर्सन जिसके पीछे पूरी सपोर्ट, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी और केस बहुत क्लियर और बहुत वाज़े होने के बावजूद भी आज एक साल गुजरने के बावजूद फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है, तो एक आम आदमी का क्या होगा। मुरीद अब्बास के दोस्तों का बड़ा शुक्रिया कि वो आज यहाँ आए, मुरीद अब्बास की अहलिया के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, साथ देने के लिए खड़े हैं। और मुरीद अब्बास को आप तमाम लोग दुआओं में याद रखें, उनकी मग़फ़िरत के लिए, सलामती के लिए दुआ करें कि उसका बेटा एक छोटा, वो अब बेटा 1 साल बड़ा हो गया है और अपने बाप के कातलों से हिसाब नहीं ले पाए। और कानून और आइन और अदालतें यही चीज़ें हैं जहाँ से हम इंसाफ ले सकते हैं, और तीसरा कोई रास्ता नहीं, ना बंदूक उठाने वाले हैं ना कुछ और करने वाले हैं, सिर्फ ये एक रास्ता है। उस रास्ते से ही अगर आप इंसाफ नहीं ले पाएंगे तो फिर इस रियासत पर, इस अदालती निज़ाम पर सवाल तो बनता है और वो सवाल हम करते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मुरीद अब्बास मर्डर केस। इससे पहले शायद बहुत खाल खाल इसकी एग्जाम्पल मिलती है, और मैं बिल्कुल बात करूंगा आदिल ज़मान की जो भी रिसेंटली ज़मानत हुई है, लेकिन इस अंदाज में उनकी ज़मानत हो गई कि उनके जो मुद्दइया के जो वकील थे वो चाह रहे थे कि हमें आगे डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन बजाय दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सुनने के उनको बेल पर आज़ाद कर दिया गया और बेल पर रिहा कर दिया गया और उससे अगली ज़मानत पर वो पेश भी नहीं हुए। अब उन कोर्ट, वो जज साहिबान और वो जो सारा एक कोर्ट का सिस्टम है जिन्होंने उनको रिलीज़ किया और जिनकी ज़मानत पर रिलीज़ किया, अब वो इस बात के पाबंद हैं कि वो आदिल ज़मान को पेश करें। वो बाहर चले गए हैं, जो कि एक केस के अंदर पूरी तरह न सिर्फ इन्वॉल्व थे बल्कि वो
قتل کے سہولتکار تھے عمر ریحان جو کہ چشمدید گواہ تھا آئی وٹنس تھا اس کو قتل کرنے کے لیے پکڑا تھا اس نے عادل زمان نے اور اس پر فائر کیے تھے اس نے جو مرڈرر تھا مین اس نے فائر کیے تھے اور اس کو پکڑنے کے بعد ان کو دھکا دے کر وہ چھوڑ کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی مطلب اس طرح سے جو انوالو ہو کیا اس کی ضمانت ہو سکتی ہے وہ تو پوری طرح انوالو اور کنوکٹ ہونا چاہیے یہ سوالیہ نشان ہے اور اس سوال کو حل کرنا ہوگا آپ کو ورنہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے بعد شاید میں نے اس کو ایک آدھ باری کہا پھر نا یہ ناراض ہونا شروع ہو گیا موڈ سے ناراض ہو گیا جی ٹھیک